Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 5 derivative. Today's topic are introduction, the physical concept of derivative, the geometrical concept of derivative. First of all, at the very beginning, the first question that arises in our mind is basically what is derivative. So, a derivative basically is the rate of change of a quantity at a particular time. The procedure of finding the derivative is known as differentiation and its reverse process is known as integration. Though both these are the procedure and these two are the basic concept of a calculation. Even we can say that these concepts are the even heart of the calculation, our calculus. सो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव इज़ बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी. वो किसी भी क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है डेट इज़ द डेरिवेटिव. इफ़ आई से रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, that is also a derivative. If I say rate of change of a speed with respect to time, this is always again a derivative. If I say rate of change of money with respect to time, this is always again a derivative. So basically derivative क्या है? किसी भी चीज़ का change with respect to any quantity is known as derivative. So the process of finding the derivative is known as differentiation and the reverse process is called as integration. So in this particular session we are going to learn about these derivation, how it is useful in our daily life, what are the physical aspect of these derivative and what are the geometrical aspect. So first of all, the physical concept. So this approach was used by Newton in the development of the classical mechanics. The main idea of the concept of velocity and the speed, basically ये सबसे पहले न्यूटन ने यूज़ किया था in the concept of velocity and the speed. So velocity is always equal to distance by time. So we can say that velocity is always equal to distance by time, that is equal to rate of change of distance. So we can say that the main idea is the concept of velocity and the speed. Indeed, assume you are traveling from a point A to B. हम एज्यूम करते हैं हम 2 पॉइंट ए टू बी के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं. व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप? हम लोगों की एवरेज वेलोसिटी क्या रही ट्रिप के अंदर, हमें वो निकालनी है. सो द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टाइम टू गेट ए टू बी. So if we know, now assume that A and B are very close to each other, we get close to what is called instantaneous velocity. इफ़ ए और बी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक ही मोमेंट के ऊपर हमारे पास चेंजिंग हो जाएंगी, सो हम उसको बोलेंगे डेट इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ऑफ कोर्स इफ़ ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर देन द टाइम इज़ टेकन टू ट्रेवल ए टू बी विल ऑल्सो स्मॉल. इफ़ आई से कि मेरे पास ए टू बी बहुत क्लोज है तो हमारे पास टाइम क्या होगा अप्रोच करने के लिए, बहुत कम हो जाएगा. सो क्लोज टाइम को हम लोग, बहुत कम टाइम को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट एज्यूम दैट टाइम टी इज इक्वल टू ए, देन वी आर एट पॉइंट ए. इफ़ द टाइम, जो मेरे पास टाइम है वो थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेगा तो हम लोग पॉइंट बी के ऊपर पहुंच सकते हैं. सो इफ़ द टाइम इज़ इंक्रीज टू सम डेल्टा टी, टाइम मेरे पास कुछ डेल्टा टी से इंक्रीज़ हुआ तो टाइम इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा टी, देन एस टी इज़ माई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, देन द एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. एस टी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, एंड डेल्टा टी क्या है मेरे पास शो करेगा? मेरा टाइम डिस्टेंस. इफ़ आई से एफ टी डिस्क्राइब द पोजिशन एट पॉइंट टी, एफ टी डिस्क्राइब कर रहे हैं पोजीशन को एट पॉइंट टी के ऊपर, देन डेल्टा एस क्या है? डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, वो किसका इक्वल होगा? ए प्लस डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ माइनस एफ ए इनिशियली. तो इनिशियली कहाँ पे थे और एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के ऊपर कितना चेंज हुआ वो हमें दिखाएगा रेट भाई पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज हुआ. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय delta t. Here is an example. Consider a parabolic motion given by the function ft is equal to t square. The instantaneous velocity at t is equal to a is given by.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक स्मॉल टाइम इंटरवल ऐड कर देते हैं, दैट इज डेल्टा टी. सो this is given by limit delta t approaches to 0 f of a plus delta t minus f of a divided by delta t is equal to limit डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस डेल्टा टी स्केयर. हम यहाँ पे अपने फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं. मेरा फंक्शन है टी स्केयर, तो हमारे पास टी की जगह हम पहली बार रखेंगे ए प्लस डेल्टा टी, सेकेंड टाइम हम लोग टी की जगह ए पुट करेंगे. सो हेयर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो ए प्लस डेल्टा टी स्केयर माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा टी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस डेल्टा टी स्केयर plus 2a delta t. Now minus a square divided by delta t. So this is equal to 2a delta t plus delta t square divided by delta t. क्यों? क्योंकि a square से a square हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. That is equal to 2a plus delta t. वो मेरे पास 2a plus delta t के इक्वल आ गया. So we conclude that instantaneous velocity at t is equal to a is equal to 2a. This concept of velocity may be extended to find the rate of change of variable with respect to another variable. तो ये concept था जो हम लोगों ने आगे यूज़ किया to find the rate of change of any variable with respect to any another variable. For example, the volume of a gas depends upon the temperature of a gas. देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. सो इन केस the variable v as a function t, in general if we have y is equal to fx, then the average rate of change of y with respect to x is equal to dy by dx. Here is now the geometrical concept of derivative. So consider a function y is equal to fx and its graph. Recall the graph of a function is a set of points x or fx पे for x from the domain and fx is from the range. We may draw the graph in the plane with a horizontal axis and a vertical axis. Now draw the graph. हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया between x and f of x. x और f of x के बीच में हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया. नाउ फिक्स अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ. हम लोग एक ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं. से एक्स नोट एंड एफ ऑफ एक्स नोट. इफ़ द ग्राफ एज अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज़ नाइस. जो हमारे पास ग्राफ था एक ज्योमेट्रिकल फिगर में बहुत नाइस जो होता है, स्मूथ जो होता है अराउंड दिस पॉइंट, दिस इज़ द नेचुरल टू आस्क वेदर वन कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द ग्राफ एट द पॉइंट. सच straight line is called tangent line at the point in the question. The concept of tangent may be viewed in more general framework. So tangent क्या होती है? tangent एक ऐसी straight line होती है जो given point को एक given line को एक single point के ऊपर टच करती है, जो straight line होती है. So here is our tangent. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे tangent ड्रॉ की, एक पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एक straight line को ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट वन वे टू फाइंड द टेंजेंट लाइन इज़ टू कंसीडर द पॉइंट. हम लोगों ने एक पॉइंट को कंसीडर किया एक्स और एफ एक्स को ऑन द ग्राफ वेयर एक्स इज़ वेरी क्लोज टू एक्स नोट. वेयर जो मेरे पास एक्स था बहुत क्लोज था एक्स नोट से. हम लोगों ने फिर क्या किया, नाउ ड्रा द स्ट्रेट लाइन. हम लोगों ने बोथ पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने एज्यूम करनी ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी. तो उससे क्या मिला, हम लोगों को एक पर्टिकुलर टेंजेंट ऑब्टेन हो गई. सो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. एज you can see x gets closer and closer to x नोट, द लाइन गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू टेंजेंट लाइन. जैसे ही मेरे पास x और x नोट बहुत क्लोज होते रहे वैसे ही जो मेरे पास लाइन थी वो टेंजेंट लाइन के क्लोज होने लगी. इट मीन्स जो वो लाइन थी वो एक स्ट्रेट लाइन और सिंगल पॉइंट पे टच होने वाली एक टेंजेंट लाइन बनने लगी. सो सिंस ऑल दीज लाइन्स पासिस थ्रू द पॉइंट, सिंस जो सारी लाइन थी हमारे पास एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स नोट से ही पास हो रही थी, देयर इक्वेशन विल बी डिटरमाइंड फाइंडिंग द स्लोप. तो हम लोगों ने पर्टिकुलर इसी इक्वेशन को यूज़ किया जब हमने किसी भी कर्व का स्लोप निकालना था. सो द स्कोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नोट एंड एफ ऑफ एक्स नोट एंड एक्स एंड एफ ऑफ एक्स
इज गिवन बाय, जो मेरे पास स्लोप था तो हम लोगों ने स्लोप को रिप्रेजेंट किया, एम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नोट. सो द टेंजेंट इज सेल्फ हैव अ स्लोप m, जो मेरे पास टेंजेंट है उसके पास भी एक स्लोप होता है m, विच इज़ वेरी क्लोज टू एम एक्स. वी हैव when x itself is very close to x naught, this is the concept of limit. In another words we can say that, in other words में हम लोग बोल सकते हैं m is equal to limit x approaches to x naught mx is equal to limit x approaches to x naught f of x minus f of x naught divided by x minus x naught. So here another is the definition of compute to the derivative. So a function fx is derivative at a point x is equal to a. हाँ, मेरे पास एक कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव कब होगा, इफ़ मेरे पास उसकी जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करती होगी. सो वी कैन से दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल इंटरवल एच, एंड वी कैन से दैट लिमिट दैट एच अप्रोचेस टू जीरो एंड a plus h minus a of f of a divided by h. Let us consider an example. If I say fx is equal to x square, मेरे पास जो फंक्शन है वो x स्क्वेयर का है, मुझे बताना है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा. तो हम लोग अगेन करेंगे f ऑफ a प्लस एच लेंगे माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h. h इज़ माई स्मॉल इंटरवल. इन केस ऑफ x स्क्वेयर तो मेरे पास क्या होगा, x स्क्वेयर की हम लोग बात करते हैं तो x स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच. तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डेट कम्स टू 2a प्लस एच. नाउ अप्लाई द लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल टू 2a. नाउ कंसीडर एन अनदर एग्जाम्पल, हम एक और अनदर एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x इज़ नॉट इक्वल टू 0. वी हैव, हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच. फंक्शन क्या है मेरे पास 1/x. सो हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शन को, तो क्या आएगा 1/a प्लस एच माइनस 1/a डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, डेट इज इक्वल टू a माइनस a प्लस एच डिवाइडेड बाई एच ए प्लस एच. नाउ a से a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. नाउ दिस कम्स माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई एच ए इंटू ए प्लस एच. नाउ अप्लाई द लिमिट, हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल टू -1/a स्क्वेयर. तो हमारे पास ये क्या आता है -1/a स्क्वेयर. सो द algebraic track in both the example has been to a factor of h in the numerator, so that we can cancel it with h in the denominator. In this what you can try to whenever you are asked to compute the derivative using the limit definition. Now here is an another example. यहाँ पे हमारे पास another example है where fx is equal to modulus of under root of x. So we have f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. Apply the limit, that comes to plus infinity. वो हमारे पास क्या आ जाता है, plus infinity आ जाता है. So when f dash 0 does not exist, but observe that the graph as a geometrical figure has a tangent, then हमारे पास इसकी टेंजेंट की हम लोग ग्राफ ऑब्टेन करते हैं. सो इन फैक्ट इन मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट द टेंजेंट लाइन वॉज इंट्रोड्यूस इज बेस्ड अपॉन द नोटेशन ऑफ द स्कोप. We already know that the vertical line do not have a slope, so we say that the derivative does not exist whenever the tangent line is vertical. So now question for all of you people. At the very beginning my first question is explain the term derivative, why we use derivative, what's the use of derivative. My second question is give the geometrical concept of derivative. So we will wind up our session here. We will discuss further in next class. Till then we learn, happy learning, we learning.